months who had been, camping for this and how the situation was, and we are clear about it. And the fourth runner has always been Nabam Tuki. So we at least at least 98% probability we can say. With 98% probability we can say that Nabam Tuki is the main contender. Nabam Tuki is in the forefront, as we have been saying throughout the day, and we understand through our sources in Delhi that the name of Nabam Tuki has been placed to Sonia Gandhi, and Sonia Gandhi is likely to announce the name. And in all probability, I will like to mention it again, that by 10:30 a.m. to between 12:30, the new Chief Minister of Arunachal Pradesh will be sworn in, because we know that the AICC observers are likely to leave after 12 tomorrow. Swati. Well, Saidul, there has been a political unrest in Itanagar since a very long time. But do you think that this new swearing in will, the political unrest will come to an end? Saidul. Still, Arunachal has been a very, very peaceful state in the terrains of Dorji Khandu, and after the unfortunate incident, we have seen how the new government was installed, and after that, what has happened in Arunachal Pradesh, the complete development has been completely come to a halt, and we see now that with the new government which will be installed tomorrow, we can hope that the state will come back to its normalcy and things will move on easily as it happened, and we see a stability coming in the offing in Arunachal Pradesh. Well, Saidul, we have Rajneesh ji with us in the studio. धन्यवाद स्वाति। सैदुल, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि इतनी लंबी प्रक्रिया चली है, ये जो रसाकसी की अगर बात करें तो पिछले 36 घंटे में बहुत तेजी से घटनाक्रम बदला है। आज की अगर स्थिति बात करें तो आज भी जो मीटिंग हुई, आज सुबह जो मीटिंग हुई, वह 1 पॉइंट एजेंडा की बात की जा रही है, वो भी बड़ी संक्षिप्त बैठक थी और मीडिया को उससे दूर रखा गया। तो सारा जो ये घटनाक्रम है उसको देखकर क्या लगता है कि क्या स्थिति है वहां, क्यों इतनी गोपनीयता बरती जा रही है? हाँ रजनीश, आपने जो अभी एक सवाल उठाया कि मीडिया को इस इश्यू से क्यों दूर रखा गया, क्योंकि यहाँ पे जो हर एक चीज को रिमर्स मीडिया ने भी लिया, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कुछ भी एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन लिया, इस इन्फॉर्मेशन को ब्लो अप किया गया और यहाँ पे बहुत रॉन्ग डूइंग्स हुआ गया। तो इस इन्फॉर्मेशन को अगर करेक्टली नहीं दिया जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आज अगर मीडिया को दूर रखा गया, कहीं पे भी हमने देखा कि जब हमने बात करने की कोशिश किया कि नो वी आर स्ट्रिक्टली आस्क्ड बाय नॉट टू टॉक ऑन द इशू, so we see that there has to be some reason, that's why, because it's a very very sensitive state, and अगर कोई भी कुछ भी बोल देता है तो it can have a repercussion in the state. So I think media was kept away and media was not informed properly, and we have seen how media had been trying to take the issue blow up the issue out of proportion, and basically that could have been reason, because छोटा सा एक भी इंफॉर्मेशन मिलता है तो उसे खींचने का कोशिश किया मीडिया ने, तो इसलिए मीडिया को दूर रखा गया होगा या दूसरा कोई रीजन होगा which we cannot say, but we know that we have been trying to get in touch with all the people. They don't want to come on camera, they don't want to say, but unofficially yes they say, but please don't quote us, please don't say anything. So this is the kind of situation in Arunachal Pradesh as well as in Delhi, who are dealing with the Arunachal Pradesh political stalemate. जी सैदुल, आपके साथ वहां प्रणव भी मौजूद हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज सुबह उन्होंने कई लोगों से बात की, वहां के वरिष्ठ पत्रकारों से भी वो मिले और उनकी राय जानी चाहिए। तो यहाँ सवाल है कि एआईसीसी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि पर्यवेक्षक 3 बार आए, 3 पर्यवेक्षक आए, कई बार उनका दौरा हुआ, सांडिल्य थे, शिंदे थे और पूर्व डोनर मंत्री हैंडिक भी वहां मौजूद थे। उसके बावजूद इस जो पूरी स्थिति है उस पर नियंत्रण पाने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, इतनी रसाकसी क्यों हो रही है, और जो वहां जातिगत समीकरण की जो बात है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है। और सवाल यह है कि अगर निर्णय ले लिया जाता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उसके बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि वहां शांति बहाली हो जाएगी। रजनीश, आपने जो सवाल पूछा, मैंने प्रणब बहुत लंबी दौर से अरुणाचल प्रदेश को फॉलो कर रहे हैं, आज भी सुबह से अरुणाचल प्रदेश में है और आज वो पूरा जो मीटिंग का ये घटनाक्रम हुआ उसने देखा, और आज यहाँ पे उसने भी बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, और आज ये जो सिचुएशन था उसके बारे में मैं प्रणब से कहूँगा कि इसे हमारे दर्शकों को बताए। हाँ जी रजनीश, थैंक यू सैदुल। आज सुबह से हम लोग जो लंबे दौर पे दिखा रहे थे, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि ये है जो पेपर्स अरुणाचल प्रदेश गवर्नर सेक्रेटरीट से जो ये पेपर्स दिया गया था, ये पेपर्स के ये बताया गया था 3:45 में अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जरबम गामलिन ने उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा गवर्नर के हाथ में सौंपा गया। उस इस्तीफे का बाद गवर्नर हाउस से ये लेटर हम लोग का पास आया, प्रेस में आया, मीडिया के पास ये लेटर आने के बाद कंफर्म हो चुका है जरबम गामलिन ने इस्तीफा
गवर्नर हाउस में ऑलरेडी फाइल कर दिया। लेकिन इस स्टेटमेंट का बात रजनीश ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ के हार्ड लोग, लेकिन उसमें एक चीज और दोहरा गया है, वो जो है क्योंकि अंतिल जब तक नया गवर्नमेंट नहीं बनता है तब तक जरबम गमलिन को चीफ मिनिस्टर में रहने के लिए इन गवर्नर ने बुलाया है। राजेश, एक बात है जो देखा जाता है काफी दौर से, लंबा दौर से हम अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश के 98 से लगभग काफी जो राजनीतिक जो उठक बैठक हो रही है वो काफी दौर से चल रहे हैं। लेकिन इसके बाद तो सबसे ज्यादा बात यह है, लास्ट जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दोरजी खांडू जी का देहांत का बाद यहाँ पे जो एक्चुअल लीडर होना चाहिए था वो पब्लिक का व्यू में वो नहीं हो पाया। जी प्रणव, ये सुना हमारे, हाँ रजनीश आप सवाल करिए। जी प्रणव से जानना चाहेंगे कि इससे पहले भी अरुणाचल में अस्थिरता का एक रिकॉर्ड रहा है, ये कोई नया नहीं है। अस्थिरता इससे पहले भी थी, दोरजी खांडू के पहले थे, मुकुट साहब थे, उनको हटाया गया, उसके बाद वो आए, जबरन उनको मतलब एक प्रेशराइज किया, दबाव बनाया गया था उस समय और दोरजी खांडू को वहां लाया गया था। और अब जो स्थिति बनी है, दोरजी खांडू के निधन के बाद जारबम गैमलिन को लाया गया। उस समय जो पार्टी की ओर से जो सक्रियता दिखी थी वो 5-7 दिन का गैप था और उसके बाद तुरंत निर्णय ले लिया गया और गैमलिन को बनाया गया। उस समय भी इस तरह की बातें थी, ऐसा नहीं था कि विक्षुब्ध उस समय नहीं थे या इसके विरोधी नहीं थे या जारबम गैमलिन को सर्वसम्मति से बनाया गया था, ऐसा नहीं है। उस समय भी लोगों को यह एहसास था कि ऐसी मुश्किलें आ सकती हैं। उस समय भी टुकी का नाम उछला था और ये बातें की जा रही थी कि चूंकि वो वरिष्ठ नेता हैं और काफी लंबे समय से ये राजनीति से जुड़े हुए हैं तो उनका ही नाम मुख्यमंत्री पद के लिए दिया जाएगा। लेकिन अंतिम समय में अचानक हैरत में डालने वाला फैसला किया गया था। तो अगर इसके अब पुनरावलोकन करें तो ये चीज छन कर सामने आएगी कि कहीं ना कहीं एक तरह का दबाव जरूर था। When we have seen that the unfortunate incident had taken place, that the government had to suddenly decide, the AICC had to decide that Jarbong Gamlin will be, sworn in as the new chief minister of Arunachal Pradesh in the month of May. But we have also seen that instability has always been there in Arunachal Pradesh during the time of Mukut Medi and how the government was toppled. You have been observing Arunachal Pradesh political situation at that point of time. So if you can, enlighten our viewers about the political instability and how things changed and how things had become stable in that point of time, and how the decision of AICC at present in the month of May when the unfortunate incident taken place, and how they had to quickly take the decision of having Jarbong Gamling as the chief minister when there was a popular demand by the people, by most of the Congress legislators, Nabam Tuki, we made the chief minister. Yes, Saidul, look in the future, if you go in the go ahead some of the 1 month back, then you see that there was after the incident of the Doorji Khondo, there was not they immediately suppose they choose the new chief minister. In that times when you see again in the Arunachal background, then when the controversial is coming in again in this Arunachal Pradesh, because it is like a scale of the development, because the main thing is the development is the scenario of Arunachal Pradesh. Last 4 months there is no any development work as taken, but that is the main point. इसी बात के लेके जो डेवलपमेंट के सिनारियो मतलब यहाँ पे ठप हो गया था कुछ महीने से, जो पॉलिटिकल के उठक बैठक यहाँ पे चल रही थी, उसी के दौरान ये सिलसिले आ रही हैं। लेकिन अभी जो AICC को जो इसके सुझाव लेना चाहिए था, वो सुझाव दे आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजन, बट सोनिया गांधी डिड नॉट टेक एनी डिसीजन विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, बट दे push up to in the Arunachal Pradesh again and that again and again sending that AICC observe her and 2 times, and the last time today, but they don't declare today also. But after resignation of the Gamling, it is confirmed that again the new chief minister will be happen here. रजनी, जैसे आपने सुना है कि आज जैसे कैसे मीडिया को दूर रखा गया इस इश्यू से, कैसे मीडिया को दूर रखा गया, कोई इन्फॉर्मेशन देने का बात नहीं है, एंड जो जनता को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ये मीडिया के थ्रू ही है, लेकिन मीडिया को भी आज साइडलाइन किया गया। मीडिया भी बहुत कोशिश करके कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया और अपनी ऑडियंस को एनलाइटन करने के लिए, अपने ऑडियंस को अपडेट करने के लिए कोशिश किया। तो आप अगर हम लोग देखते हैं कि आज जो सिचुएशन है अरुणाचल प्रदेश की, कि कैसे ये क्यों इतना सीक्रेसी रखा गया, क्यों इतना डिले हुआ, दैट इज a question which we need to think upon. Why AICC had taken such a long time to take a decision, and why AICC directed Jarbong Gamling to resign after such a long time? Rajneesh. सैदुल, ये सवाल सबसे बड़ा सवाल, सचमुच ये अहम मुद्दा है कि AICC को इतना समय लगा एक निर्णय लेने में, जबकि ये संकट का जो दौर शुरू हुआ वो उनके मुख्यमंत्री जारबम गैमलिन के मुख्यमंत्री बनने के 1 महीने बाद से ही ये शुरू हो गया था तनातनी। और ये बात भी सामने आ गई थी कि प्रदेश कांग्रेस, अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस में ही 2 फार हो गया है। एक है जो वो नबाम तुकी के साथ है, एक धड़ा जो है वो जारबम गैमलिन के साथ है।
ये तय था, उसके बावजूद स्थिति को बिगड़ने दिया गया और आज स्थिति यह है कि उसका खामियाजा पार्टी नहीं भुगत रही है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश की जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। विकास के काम रुके हुए हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है और उसके बाद आज निर्णय लेने की स्थिति आई है। रजनी, जैसे आपने अभी पॉइंट आउट किया कि कैसे एआईसीसी का जो डिसीजन लेने में देरी आया उससे कैसे अरुणाचल प्रदेश में प्रॉब्लम आया, अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए खासकर डेवलपमेंट कैसे ठप हो गए, कहाँ देयर वाज नोबडी टू टेक डिसीजन ऑन एनी अदर इशू, सब बिजी हो गए थे, डिसीजंस हो रहे थे, दो कैंप डिवाइड हो गए थे, कैंपेन चला था कि आउट करना चाहिए जारबोम गामलिन को और ये बहुत टाइम लग गया, तो इससे वजह से लोगों को परेशानी हुई, यहाँ पे कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आ गया। तो आप अगर देख सकते हैं कि हमारा जो ये हिमालयन स्टेट है इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद चाइना, तो इतना ये जो सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए जो एआईसीसी ने दिल लगाया, एआईसीसी ने अभी भी दिल्ली में भी दे हैव टिल संडे इवनिंग आल्सो दे वर नॉट क्लियर ऑन व्हाट विल बी हैपनिंग हियर, दे वर टाइट लिप्ड ऑन द इशू। सो वी डेफिनेटली सी दैट there might have been a political pressure from one end or the other, but the coup has been cleared. Now we know that resignation has been tendered by Jarbom Gamling, and we now see that in all probability the Arunachal Pradesh is all set to have a new chief minister tomorrow. Well, Saidul, the rift between Tukey and Gamlin had become a major issue, dividing the party along ethnic lines in the state, with the majority of Congress legislators demanding Gamlin's resignation for his alleged authoritarian rule. What is your take on that? See, Swati, as you are talking about authoritarian rule, see, unless and until we are part of the government, we don't understand how they have been authoritarian. It's only from the people, it's only from the Congress legislature we understand that they have alleged that Jarbom Gamling has been authoritative. He had been taking decision of his own. He did not consult his cabinet. But even he, when a few days back, Frontier TV had interviewed Jarbom Gamling in New Delhi, he said, "You asked the dissident camp how I have been authoritative, how I have taken decision without my cabinet consultation." So we now know these politics, blame games are always there. But the question has been that a popular choice, a popular leader, that's the question, and that's why people fight. That's why people are in politics, to make a difference for the state, to make a difference for the people they represent. Swati. सैदुल, यहाँ आपसे ये एक बात जानना चाहेंगे प्रणव से, खास करके कि प्रणव, ये जारबम गैमलिन के खिलाफ विधायक जो विक्षुब्ध थे वो एक धड़ा तो बना ही, लेकिन बाद में जो निशी समुदाय ने एक मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि जारबम गैमलिन की ओर से वो मांग कर रहे थे कि भाई उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जो स्टेटमेंट, जो बयान एक राष्ट्रीय दैनिक में आया था उसके ऊपर, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। उसके बाद गैमलिन के ऊपर एक अलग से दबाव बना, जिसका एक ये बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है इस निर्णय के पीछे कि अब उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ रहा है फिलहाल। Few days back we had seen that there was an issue on a national newspaper which had given a derogatory remark on the Nishi community of Arunachal Pradesh. So you have been monitoring the issue, and there was the demand from the organization, the ANSU and the NES, that the Jarbom Gamling should be able to come clean on why this has come, the proper enquiry, but we have seen that enquiry was not there. And Rajneesh wants to know that, is it because of such a small issue, or the issue which can, ignite people, a newspaper article had made this situation completely different, or there could be some other issue? यस, आपने सही बोला है सैदुल। रजनी से ये बात इस तरह के है क्योंकि जिस टाइम में ये सिचुएशन का बात उठा था वो एक्चुअली एक गलत न्यूज़ निकलने की वजह से ये हो रहे हैं। ये मैं नहीं, ये सारी दुनिया आज कह रही है, और इसी की वजह से ये बात अलग है। इसी का बात लेके ये पूरा ही नहीं था, लेकिन उन्होंने जब जारबम गामलिन को ये सवाल पूछा था, निशी एलाइट सोसाइटी और बाकी जितना भी यहाँ का लोकल पब्लिक, लोकल कम्युनिटी ने 2-3 बार यहाँ पे बैठक बुलाए थे, लेकिन किसी का सवाल उन लोगों का जवाब नहीं मिले, जिस जवाब से उन लोगों को कुछ फैसला हो सकता है, क्योंकि हम लोग का अपना लीडर से, जो लीडर है वो लीडर हम लोग का इसका जवाब देंगे, कुछ इसमें जवाब होंगे, नहीं तो इससे ऊपर कुछ कार्रवाई होंगे, लेकिन नथिंग इज डूइंग हियर इन दैट वे। दैट इज द मेन एजेंडा। तो ये जो डेरोगेटरी रिमार्क था, जो एक कम्युनिटी यहाँ पे निशी कम्युनिटी माना जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में कई 75 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन आर निशी कम्युनिटी, और जो डेरोगेटरी रिमार्क था उसके वजह से ही ये क्रॉप अप हुआ, या क्योंकि कुछ दिन पहले जो रेफरेंडम रैली होना जा रहा था, यहाँ पे जो एक रैली हो रहा था वहां पे भी बोला गया था कि लेटर कि जारबम गामलिन को रिजाइन करना चाहिए। तो वेदर द इशू वाज पॉलिटिकली मोटिवेटेड और समथिंग लाइक दैट? No, that is not a politically motivated. That is the agenda, main agenda of this community. It is their demand. It is their demand. Then they need in the demand, and they want to fulfill their demand by their honorable leaders.
जी सैदुल, यहाँ प्रणव से ये जानना चाहेंगे कि ये मुद्दा तो पता है, ये पहले से था और विक्षुब्ध जो थे, विरोधी जो थे, वो जारबोम के खिलाफ खड़े हो गए थे, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि निशी समुदाय की जो मांग थी उस पर जो वो फैसला नहीं लिया गया, उस पर कार्रवाई, जो कथित तौर पर कार्रवाई नहीं की गई, उसके बाद ये मुद्दा और गर्मा गया और गैमलिंग के खिलाफ जो एक विरोधी लहर थी वो लहर और मजबूत हो गया और आज स्थिति ये आई है कि अब उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। ये इसमें ये एक बड़ा अहम कारण है कि नहीं, ये जानना चाहते हैं प्रणव सर। So Rajneesh wants to know that was it the popular demand of the Nishi community in Arunachal Pradesh that Nabam Zuki, or the political situation which has become very peculiar to complicated in fact to see that made the Jarbon Gamling